But yes, Snigdho, you can hear me, Snigdho, are you there? इस क्वेश्चन में what you tried? सर इसमें मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा है। लाइक इसमें अगर वेवलेंथ अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे या फिर इंटीग्रेट करेंगे, वो मतलब समझ नहीं आ रहा है यू को। अच्छा, तो सबसे पहले ये क्लियर है, कल भी मैंने बताया था कि हम डिफरेंशिएशन कब करते हैं और इंटीग्रेशन कब करते हैं। जब हमारे पास कोई क्वांटिटी होता है, लेट अस सपोज आई हैव वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और मुझे एक्सीलरेशन निकालना है, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा, राइट? एंड इफ आई वांट टू फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस मीन्स फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज, यू कैन से अप्रोक्सीमेटली। बट अगर वहीं पर हमें ये पता है कि इसके रिवर्स चलना है, तो वहां पर हम इंटीग्रेट करेंगे। सो हियर we will go through the basic idea, although again I say the idea that we are going to discuss, that is in class 12th application of derivatives. Okay, so here let us see the idea. What you have to find, you have to find wavelength when refractive index is maximum, right? So in this case what we can do, we can differentiate. So idea, let us remember the idea. So this is a new idea, you all can remember. Differentiation has been completed for you all guys, right? But its application maybe you all would not have gone through. तो हम क्या करेंगे, we will see a case how to find maximum और minimum, maximum और minimum value, इसको हम कहते हैं मैक्सिमा या मिनिमा। और जिस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा होता है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। With respect to a question, it will become clear. Then we will come back to this question. So the logic is, if y is a function of x, and here if I want to find the maximum or minimum value, then I will differentiate this and equate it to zero. ये equate to zero कब करना है? When I have to find maxima or minima. We are not sure now whether it is maxima or minima. We have another approach to deal with that. So let us take the example parallelly. So let us suppose I have a function y is equal to x square minus 2x, and I want to find maximum value or minimum value. We will decide that later on. तो पहला स्टेप क्या होगा? We will differentiate this. Differentiate किया हमने y को, तो क्या मिला? 2x minus 2, and I have to equate it to 0. So from here I see that x is equal to 1. It is the point of maxima or minima. We are not sure. Now we will confirm whether it is point of maxima or minima. So for that we have another condition कि ये जो y को हमने वन टाइम डिफरेंशिएट किया, यहाँ पर we have differentiated one times, you will differentiate it twice. फिर से डिफरेंशिएट करेंगे. So this is y dash, right? So if we find y double dash, and if this value comes out to be negative or less than 0, then it is the point of maxima. और अगर greater than 0 आता है, तो this is the point of minima. अभी के लिए ये याद रखना है. लॉजिक क्या है? यू विल गो थ्रू इन द मैथमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं. y ये था हमारा, y डैश हमारा ये हुआ, राइट? y डबल डैश देखें तो ये क्या आ जाएगा? फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, राइट? y डैश ये था, हमें हमें ये मिला था y डैश. y डबल डैश निकालेंगे तो क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट किया हमने, हमें मिला 2. सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व हियर? दैट दिस पॉइंट 2 is greater than 0, right? So is this the point of maxima or the point of minima? We have the condition written on the right. This is the point of minima, right? That means हमें जो वैल्यू आएगा x पे, what does this indicate? यहां से हमें पता चल गया कि मिनिमा है.
तो जो पॉइंट मिला x इज इक्वल टू 1, इसको अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा फंक्शन का वैल्यू, दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू, राइट। सो दीज ऑल थिंग्स ऑल्सो यू विल गो इन डिटेल। ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज नॉट द ओनली वे टू डील विथ मैक्सिमा और मिनिमा, बट आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू बिकॉज हियर some kind of function was given, that this refractive index was a function of wavelength, right? जैसे जैसे wavelength change होगा, refractive index हमारा change होगा। Okay, coming back here, so if I want to find minimum value of this function, अगर ये question let us suppose हमारा था, तो minimum value क्या होगा? Remember, x is equal to 1, this is point of minima, that's what we can find using step 2. So minimum value will be y equal to 1 squared minus 2 into 1, that will be minus 1, right? So anyone can guess कि maximum value क्या होगा? अगर quadratic equation हो भी गया होगा ना, so there are ways to draw the graph of quadratic equation. Quadratic equation complete हुआ है, ax square plus bx plus c. How to draw the graph? Check for a. If a is positive, graph is open upward, right? ग्राफ इज ओपन अपवर्ड। तो यहां पर देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x। लेट मी नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज इट ओवर? हो गया है ना? नहीं नहीं, टेंथ टेंथ वाला नहीं, 11th वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू हैव नॉट बीन गॉन थ्रू। तो चलो ये भी याद कर लेते हैं, जैसे थोड़े शॉर्टली देख लेते हैं इसको। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। when it is a quadratic equation, जब हमारा a 0 नहीं होगा, right? If a is 0, I cannot say this is quadratic equation. So it is must that the coefficient of x square is not 0. Now I will only tell how to draw the graph. पहले हम a का साइन चेक करेंगे। अगर a पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऊपर जाता है, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा याद रखेंगे यू शेप्ड। तो a पॉजिटिव है मींस यू शेप्ड, a नेगेटिव है दैट मींस उल्टा, इट ओपन्स डाउनवर्ड। नेक्स्ट थिंग, हाउ कैन वी फाइंड द पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा? देखो इस काइंड का अगर ग्राफ रहेगा ना कहीं पर, लेट अस सपोज ये हमारा एक्स वाई है, ये ग्राफ में कहीं पर भी रैंडमली बना दिया। इस ग्राफ से क्या समझते हैं हम? लेट अस सपोज दिस इज द ग्राफ। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस? ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशंस, राइट? दैट इज ऑल्सो क्लियर कि अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकाल लेता हूं, इफ आई फाइंड द मिनिमम वैल्यू टू बी लेस देन 0, वी कैन से देर आर 2 रूट्स only for this case, 2 roots when a is positive, right? थोड़ा ये टफ लगेगा, बट when you will go through quadratic equation you will all be habituated with all these things। ठीक है, तो हम पिछले क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने निकाला ना मिनिमम वैल्यू -1 है, और ये देखो कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, दैट मीन्स इसका ग्राफ कैसा होगा? बनाकर भी देख सकते हो, 8-10 पॉइंट ले लो एक्स का, फिर वाई का पॉइंट निकाल के, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ यू विल गेट द आइडिया। तो ये ग्राफ हमें पता चल गया ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा ना। हाउ डू वी नो कि ये कौन सा ग्राफ सेलेक्ट करें? हाउ डू वी नो विच ग्राफ टू सेलेक्ट? So I can find the roots that will give me the idea, equate it to 0। रूट्स निकालना है मतलब y का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू 0 होगा, राइट? किसी भी पॉइंट पे। लेट अस सपोज ये वाला ग्राफ अगर कंसीडर किया, तो क्या इस ग्राफ में y इक्वल टू 0 करने पे कोई वैल्यू मिलेगा इस ग्राफ के लिए? ग्राफ नंबर 3, इसके लिए कोई वैल्यू मिलेगा y इक्वल टू 0 करने पे? आंसर इज दैट्स राइट स्निग्धो, नो रियल वैल्यू,
है ना। तो यहाँ पर इक्वेट कर दो 0 से, हमें पता चल जाएगा x इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। तो 2 पॉइंट्स मिले हमें, एक तो 0 मिला और दूसरा 2 मिला, राइट। मीन्स वी आर श्योर नाउ कि ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ होगा हमारा 0 से जाएगा और 2 से जाएगा, यहाँ पे कट करके, राइट। और मिनिमम वैल्यू क्या मिला था, देखो गाइस, यू हैव फाउंड मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू मतलब y का वैल्यू आपने निकाला है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है दिस इज -1। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा ना। y का वैल्यू देखो, ये ऊपर चलता चला जाएगा। सो मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी। So is this clear how we even verified using the concept of quadratic equation? This was just a little introduction, but हमें याद क्या रखना है कि कोई एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो हमें क्या करना है, पहले चेक करना है कि x का कोई वैल्यू निकल रहा है कि नहीं। अब उस x के वैल्यू को लेके हम y डबल डैश निकालेंगे एंड देन अकॉर्डिंग टू दिस वी विल आइडेंटिफाई वेदर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट। ये क्लियर है, मैक्सिमा मिनिमा, लिटिल कॉन्सेप्ट अबाउट दिस। यू ऑल कैन नोट डाउन दिस इंफॉर्मेशन, ये छोटे से इंफॉर्मेशन। फिर हम वो क्वेश्चन करेंगे। नाउ वी कैन डू दैट क्वेश्चन विथ ईज। So all can write the information about quadratic equation and maxima minima. जिनको डाउट्स है दे विल आस्क मी। आई एम नॉट एबल टू ओपन द poll, नो प्रॉब्लम। जिनको डाउट्स है दे विल मैसेज मी। मोशन इन 1D, चलो अभी ही अपलोड हो जाएगा। टिल लास्ट क्लास जो भी है आई विल पुट द नोट्स नाउ। Quickly write them down. While writing, go through it once again and let me know in case of any doubt. Mini point is 2. Yes, Sampata, what does it mean? Mini point is 2 and minimum point is 2. हाँ, y is equal y dash, y double dash जो 2 निकला, this suggests that कि ये जो वैल्यू निकलेगा हमारा फंक्शन पे वो हमारा मिनिमम वैल्यू होगा, राइट। ये सजेस्ट करता है हमें कि मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। अब वो मिनिमम वैल्यू अगर निकालना है देन व्हाट वी विल डू, we will take this value of x and substitute in this function. जिनको डाउट्स है दे विल आस्क मी, नहीं तो फिर ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे अभी इन दिस लास्ट पार्ट, वहां फिर नहीं तो दिक्कत होंगे। मैक्सिमा मिनिमा क्लियर है अभी के लिए, बस हमें ये आइडिया याद रखना है।
Is vectors a part of new unit? What does this mean, Sampada? Oh, can you explain? Vectors a part of new unit, what does that mean? तो चलो ये हो गया. नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन. अब देखो, नाउ ट्राई दिस वन. अब इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो. Who asked me? Yes, Snigdho. Is the concept understood? We are discussing the doubts. Modules के homework section में. You only asked me this question, right? We are discussing the doubts. Today we will finish up the doubts in the last part of module. तो यहां से हमें पता चला ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ. नाउ कैन यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट एंड डू दिस वन. ट्राई डूइंग दिस एंड लेट मी नो वेयर यू ऑल आर स्टक. जल्दी से इसको करेंगे. 1 minute टेक ऑल ऑफ यू एंड अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू डू दिस क्वेश्चन. यहां पर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो हमें मिलेगा u म्यू डैश इज -2a/λ³ तो इसको इक्वेट करने से विल यू गेट एनी वैल्यू फॉर लैम्डा? लैम्डा विल टेंड टू बी इनफाइनाइट टू गेट द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू के लिए लैम्डा विल टेंड टू बी 0. बट इफ यू ऑब्जर्व दिस, आई हैव गिवन यू द आइडिया कि ऐसा नहीं है कि जहां पर भी मैक्सिमा मिनिमा केस रहेगा देयर वी विल ट्राई टू जस्ट यूज दिस कॉन्सेप्ट. इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन y इज इक्वल टू 1/x एंड अगर मैं बता देता हूं x लाइज बिटवीन 1 and 5, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू. फाइंड मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या मतलब है कि इसको हम डिफरेंशिएट करने लगेंगे. अगर हमारे पास ये बाउंडेशन है, वी हैव द पॉइंट्स, देन वी विल नॉट गो थ्रू दिस, राइट. ये जो x का मैक्सिमम वैल्यू होगा उस पे y मिनिमम निकलेगा बिकॉज इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन. ये जो मैक्सिमम वैल्यू है y का मिनिमम होगा, तो x जब मिनिमम होगा तो ऑटोमेटिकली y मैक्सिमम हो जाएगा, है ना. तो ये मैक्सिमम मिनिमा दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना. आई हैव बीन टेलिंग यू कि डेरिवेशन में मुझे जहां जहां लोग जो लगेगा इंपॉर्टेंट है, आई विल कीप इंट्रोड्यूसिंग यू दैट. अब इस क्वेश्चन में आते हैं डायरेक्टली. ये तो यूज नहीं कर सकते हैं तो फायदा क्या रहा वो मैक्सिमम मिनिमा पढ़ने का. सो वी हैव विथ अस वी हैव द वेरिएशन ऑफ वेवलेंथ. वेवलेंथ कहां से कहां तक जा रहा है? 400 to 700, राइट. तो हमारा म्यू का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा?
जबकि हमारा लैम्डा का वैल्यू मिनिमम होगा। एवरीवन एग्रीज? और मिनिमम लैम्डा का वैल्यू क्या है? लैम्डा 400 से लेके 700 के बीच में हो रहा है, तो मिनिमम हमारा ये है। तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। जस्ट द थिंग इज दैट along with this question we came to know कि derivative में what part was remaining that we have to go through, that was this part. Okay, next question number 10. सभी को याद रखेंगे, ये जो लास्ट यूनिट है इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट कैलकुलस के कुछ कुछ पार्ट मुझे दिख रहे हैं, तो वो पार्ट हम आज टारगेट रखेंगे कंप्लीट कर लें। Although all these things you will be going through in detail. Okay, this question next. Magnitude of viscous force in liquid is given by this. क्या होता है viscous force? अभी छोड़ देना है ये सब चीज। तो F का क्या है? माइनस ईटा ए डीवी बाई डी जेड। बट ये पैरामीटर्स क्या क्या है? जस्ट ऑब्जर्व देम। N and A, they are constants. In a certain liquid, the magnitude of viscous force is noted to be varying as ये रहा F is minus 10 dV by dz. Now the speed v of the flowing liquid is seen to vary with depth z as given by 2 e to power minus z. Calculate the, ये देखो ये क्वेश्चन कितना इजी है। अब बताओ यहां पर कैसे डाउट आएंगे कि हमें इंटीग्रेट करना है कि डिफरेंशिएट करना है। ऐसा होता है क्या कभी कि हेड टेल करते हैं, कभी इंटीग्रेट करेंगे कभी डिफरेंशिएट करेंगे? नहीं ना। v दिया हुआ है देखो यहाँ पर, and just try to understand this function. What is this function? It is indicating that v is a function of z. v z पे डिपेंड हो रहा है, राइट? तो अभी हम इसको dv by dz निकालेंगे। तो ये हमने क्या किया? डिफरेंशिएट किया। और क्यों किया? बिकॉज वी रिक्वायर्ड dv by dz to be put in this expression to find out the force. क्लियर है? तो dv by dz निकालो, माइनस टू जेड ई टू पावर माइनस जेड। अब जो डिफरेंशिएशन में जिनको दिक्कत आ रहा है वो या तो रिकॉर्डिंग्स देखें या तो प्रैक्टिस करें। ओके, dv बाई dz किस पॉइंट पे हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? ये जो वैल्यू है v का, दैट इज वेरिंग, इट इज अ फंक्शन, राइट? सो एट डिफरेंट पॉइंट्स, एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ z, देयर विल बी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ v। तो हमें z इज इक्वल टू 0 पे निकालना है, तो यहाँ पुट कर देंगे z इज इक्वल टू 0। ये माइनस टू जेड थोड़ी होगा, माइनस टू होगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे ई टू पावर माइनस जेड का क्या आएगा? माइनस ई टू पावर माइनस जेड। जेड जीरो पुट करेंगे हमें मिलेगा माइनस टू, राइट? ई टू पावर जीरो इज वन। तो हमें डीवी बाई डी जेड कितना मिला? माइनस टू। और इसको पुट कर देंगे लेके यहाँ पर एक्सप्रेशन में, तो एफ क्या मिल जाएगा? माइनस टेन इंटू माइनस टू, आंसर आ जाएगा 20 न्यूटन। लेट अस चेक इट वंस अगेन। यस, एफ विल बी 20 न्यूटन्स। ये तो सभी को समझ में आया होगा। जिनको समझ में नहीं आया, रेज योर हैंड, let me know through the chat, else we'll move to the next question. चलो कोई डाउट नहीं है, मुझे लगता है इससे सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं होगा। इनफैक्ट नाइन्थ क्वेश्चन भी दैट वाज सिंपल। लेट अस डू दिस वन। अब ये अगर सेम क्वेश्चन होगा, वी विल नॉट डू दिस।
EMF इज गिवन बाय द इक्वेशन, ये देखो ये भी सेम क्वेश्चन है ना, L इज द इंडक्टेंस, छोड़ दो क्या होता है बाद में देखेंगे, एंड इट इज अ कांस्टेंट, I इज द करंट थ्रू द सर्किट, T इज द टाइम। अब क्या दिया हुआ है, E इज इक्वल टू -3t²। ये नहीं समझना है ये क्या दे दिया है, बड़ा बड़ा टर्म EMF ये सब, दीज आर ऑल इन वेरी एट अ वेरी लेटर स्टेज यू विल कम टू नो इन फिजिक्स। तो हमें क्या ये दिया हुआ है, राइट, वेर I इज 0 फॉर T इज 0, ये भी मेंशन्ड है कि I 0 है जब T 0 है। जस्ट ऑब्जर्व इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स नाउ, एंड I इज इक्वल टू 4 फॉर T इज इक्वल टू 2, ये भी दिया हुआ है, राइट। फाइंड द इंडक्टेंस, भूल जाओ इंडक्टेंस क्या होता है, फाइंड L, दैट इज द क्वेश्चन इन दिस सिचुएशन। SI यूनिट वी डोंट रिक्वायर इट, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट L। ठीक है, तो जो L निकलेगा उसमें SI यूनिट लगा देंगे जो यहाँ पे मेंशन्ड है। सो व्हाट एक्सप्रेशन वी हैव, EMF E is equal to minus L di by dt, and EMF is also given, it is a function of T, and from here we see that I can equate these two parts। अब क्या निकालना है हमें, L निकालना है, राइट। तो अब मुझे बताओ, मौर्या विल टेल अस कि इस सिचुएशन में मुझे डिफरेंशिएट करना है या इंटीग्रेट करना है। मौर्या वरदान, यू कैन हियर मी। मौर्या वरदान, नॉट जी मौर्या। मौर्या वरदान, आर यू देयर? चलो एक आंसर मिला मुझे, डिफरेंशिएट करेंगे। टेल मी मौर्या, विल बी डिफरेंशिएट दिस? अंकित, आर यू श्योर? इफ यू ऑल गाइस हैव, लेट अस सपोज मैं ये छोटा छोटा पीस दे दिया, ये छोटा छोटा 8-10 पीस दे दिया, एंड आई टेल यू ऑल टू असेंबल इट, या इस छोटे छोटे पार्ट्स को यहाँ पर रखो। सो व्हाट यू ऑल विल डू, असेंबल करोगे छोटे छोटे पार्ट्स को, राइट, कि डायरेक्ट इसको तोड़ना शुरू कर देंगे? यू ऑल विल नॉट ब्रेक दिस, राइट, बिकॉज यू हैव द ऑब्जेक्टिव कि मुझे इसको इस रीजन में फिलअप करना है, सो आई हैव टू फ्रेम अ बिगर यूनिट। अगर मैं एक टाइल दे दिया बड़ा सा, और इसमें से कहा कि ये है पार्ट, इसमें इस टाइल्स को पुट करो, सो यू ऑल विल ब्रेक दिस, राइट, ब्रेक करके फिर उसमें पुट करेंगे। सो इस फिजिकल इस सिचुएशन में हम लॉजिकली समझ पा रहे हैं, देन व्हाई कांट वी लॉजिकली थिंक फॉर दीज सिचुएशंस। अगर मैं दे दिया एक एक्सप्रेशन dy by dx इज इक्वल टू, लेट अस सपोज कुछ भी दे दिया, तो इफ आई आस्क यू फाइंड y, तो क्या करोगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको, राइट। व्हाट डज दिस dy रिप्रेजेंट, स्मॉल पार्ट ऑफ y, स्मॉल चेंज इन y, राइट, स्मॉल चेंज इन y समझने के लिए स्मॉल पार्ट ऑफ y। और अगर स्मॉल पार्ट ऑफ y से हमें y बनाना है तो क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को इंटीग्रेट करेंगे, दैट मीन्स उनको जोड़ेंगे, राइट, वी विल इंटीग्रेट स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। तो dy से y फॉर्म करना है तो इंटीग्रेट करेंगे। वहीं अगर y दिया होता, दैट्स वेरी मच श्योर कि हमें डिफरेंशिएट करना होता। तो यहाँ पे देखो डी बाई डी टी दिया है, इसको डिफरेंशिएट क्यों करेंगे हम, हमें तो इंटीग्रेट करके एक एक्सप्रेशन निकालना है, राइट। वी हैव टू सी द कंप्लीट एक्सप्रेशन, यू हैव टू फाइंड एल, एल क्या होगा, तो पहले माइनस माइनस साइन हटा दो, यू विल गेट एल डी आई इज इक्वल टू 3t² dt। अब यहाँ ध्यान दें तो हमने क्या किया, t वाला जो dt जो था उसको राइट साइड लेके गया। Why did I take it to the right side?
dt को राइट साइड क्यों ले गया मैंने? क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे हमारा वेरिएबल या यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल इट इज प्रेजेंट, है ना? दिस इज अ वेरी लॉजिकल ऑब्जर्वेशन। ऐसा नहीं है कि हम डी ऑफ टी स्क्वायर बाय डी एक्स करके बैठ गए इसको, राइट? यू दिस शुड बी इन टर्म्स ऑफ टी। अगर ऐसा कहीं फॉर्म है तो उसका अलग रूल है डिफरेंशिएशन का, राइट? सो नाउ आई विल इंटीग्रेट इट। टाइम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? देखो, 0 से हम टाइम 2 तक गए, तो करंट कहाँ से कहाँ तक गया? 0 से लेके 4 तक। नीचे लोअर लिमिट, ऊपर अपर लिमिट, राइट? नाउ ऑल कैन इंटीग्रेट दिस। एल क्या है? क्या ये एल कांस्टेंट है? इट इज मेंशन्ड एल इज इंडक्टेंस, इट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो बाहर आया, यहाँ पे भी 3 कांस्टेंट है, बाहर आया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला? एल इंटीग्रेशन डी आई फ्रॉम 0 to 4 इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी फ्रॉम 0 to 2। नाउ L, the value for L, the complete expression for L, that is what we require. Nazneen will tell us. Are you there, Nazneen? Try integrating it and let me know what expression you get for L. जल्दी जल्दी करेंगे। नाजनीन will tell us कि L का वैल्यू क्या निकल रहा है। इंटीग्रेट करो डायरेक्ट, बस इंटीग्रेशन डी आई क्या होगा? आई, राइट? इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होता है? एक्स। सो L इंटू आई and from 0 to 4 is equal to 3 into t square का इंटीग्रेशन t क्यूब by 3 from 0 to 2। तो यहाँ से हमें मिलेगा L इंटू 4 माइनस 0 इज इक्वल टू, ये 3 और 3 हटा देते हैं, 2 क्यूब माइनस 0। तो L का वैल्यू मिल गया हमें 2, H इज द एसआई यूनिट। सभी को समझ में आया ना? कोई है जिनको ये अजीब लग रहा है ये सब चीज, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ पर अजीब लग रहा है? इफ यू ऑल विल टेल मी, so I will think about that. Maybe I will start complete ये जो चीजें हैं जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इसका वीडियो बना दूंगा, you all can watch that. If you all let me know then I can do that. Okay, सही हो रहा है ना? ठीक है, वीडियो कैन बी बेटर ऑप्शन। तो चलो एक काम करते हैं, लेट अस फिक्स कि राइट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स
जो चीजें इसमें जरूरत है फिजिक्स में इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, उसके डिटेल्ड इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस, पहले मैथमेटिकल क्वेश्चंस फिर फिजिक्स के क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, आई विल स्टार्ट दैट फ्रॉम मंडे। ठीक है, सो ऑल शुड रिमेंबर फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स यू कैन वॉच दोज थिंग्स, राइट। सो आवर मोटिव विल बी नॉट ओनली टू कंप्लीट ये फिजिक्स का पार्ट रिलेटेड टू व्हाट मैथमेटिकल पार्ट इज रिलेटेड टू फिजिक्स, बट अलोंग विद दैट हमारा जिनका मैथ्स है उनका मैथ्स भी कंप्लीट हो जाएगा, वो कैलकुलस पार्ट कंप्लीट अप टू क्लास 12th लेवल। ठीक है, ओके, सो मूविंग अहेड, बट रिमेंबर राइट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स बिकॉज आई नीड अ डे और टू टू कंप्लीट माई पेंडिंग वर्क्स। अब जो लेवल 3 है ना, लेवल 3 हटा दो। तो लेवल 3 आप तभी अटेम्प्ट करना जबकि कुछ वीडियोस देख लो, कुछ क्लासेस, एक क्लास में एक्स्ट्रा भी ले लूंगा लेवल 3 के लिए। लेवल 3 रहने देते हैं। तो द थिंग इज टेस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ऑल विल डू इट। 1 एंड 2 काफी ज्यादा क्वेश्चन है इसमें। 4 a lot of questions are there, so let us make the schedule like that कि अब से जब भी हमारा क्लास होगा these all टेस्ट पेपर्स, सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम लगेगा। 4 टेस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वी हैव, राइट। सो लेट अस स्टार्ट कि जो हमारा मंडे से क्लास होगा ना, दैट विल बी लाइक कि फर्स्ट 15 मिनट्स हम एक एक टीपीपी डिस्कस करेंगे। टीपीपी 1, ट्यूसडे हो गया टीपीपी 2, 15 मिनट्स है ना। एंड आफ्टर दैट वी विल बिगिन विथ आवर नॉर्मल अदर चैप्टर्स, राइट। तो वी हैव सम टाइम, काफी ज्यादा टाइम अभी बचे हुए हैं, और इसमें नया नया हम मंडे से ही स्टार्ट करेंगे। बाय द वे, और कोई डाउट्स हैं तो वो याद रखना है सभी बच्चों को। जैसे जो जेई प्रिपेयर कर रहे हो उनके लिए दैट इज वेरी गुड कि आपका मैथ्स भी हो जाएगा। अब जो नीट के प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं सेपरेट कर दूंगा कुछ कंटेंट्स, है ना, बट यू विल फाइंड कि जो टॉपिक लिखा रहेगा स्लैश नीट लिखा रहेगा स्लैश जेई लिखा रहेगा। मैं इसका लिंक एक काम करूंगा, सेपरेटली डाल दूंगा, नीट के बच्चों के लिए, जेई के बच्चों के लिए। हाँ, यस, एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, मेरा नंबर सभी के पास होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डाउट्स आ जाते हैं, राइट। उन डाउट्स को कैसे क्लियर करेंगे, कभी कभी होता है कि एक सेंटेंस हम बता दें या कोई बता देता है, वी कैन प्रोग्रेस अहेड। तो जो भी डाउट्स आते हैं सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप, आई विल लुक एट इट कि उस डाउट्स को मुझे क्लास में डिस्कस करना है या फिर मुझे व्हाट्सएप में ही कुछ एक दो लाइन लिख के दे देना है या कुछ बता देना है। तो जितने डाउट्स हैं, क्लिक द फोटो, सेंड इट टू मी, एंड नेवर हेजिटेट, एनी टाइम यू ऑल कैन सेंड मी योर डाउट्स। ठीक है, फिजिक्स हो मैथ्स हो, यू कैन सेंड मी योर डाउट्स। ओके, तो अभी कुछ टाइम बचा है, एक काम करते हैं, आज तो इस चैप्टर का लास्ट ही डे है, एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी विल ओनली गिव एग्जैक्ट 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, इन एवरी क्लास टू डिस्कस द टीपीपीज। ज्यादा बड़ा टीपीपी है तो चलो हाफ आवर, बट 1 आवर विल बी फॉर द क्लासेस। तो वेक्टर्स का काहूत हो गया था क्या? ये तो ऑलरेडी कंप्लीटेड यूनिट है ना, तो इसका काहूत हो गया था, है ना, हो गया था।
ओके, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम वेक्टर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस से। Apart from the modules, we will do the questions now. So yes, let's begin with the question. Each question for 2 minutes. चलो जल्दी जल्दी सब करेंगे। All will message me their answers. Angle between the two vectors, this and this is. Angle between the two vectors, what we do? We take the dot product here. तो डॉट प्रोडक्ट लिया, ए डॉट बी क्या मिला? 1 into 1 -1 into 1, तो वो हो गया 0। तो एंगल इज 90 डिग्री विदाउट डूइंग एनीथिंग, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब एंगल 90 डिग्री होता है। बिकॉज ए डॉट बी इज ए बी कॉस 90, है ना। अब जैसे ही कॉस अगर 90 हो गया तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो ए बी इंटू 0 0 हो गया। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर प्रोसेस वी गेट आंसर एज 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन।
it is found that the magnitude of resultant vector is equal to the magnitude of a vector. What does this necessarily implies? So let us square both sides. दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे. So we get a square plus b square plus 2ab cos theta, right? That is equal to a squared. तो यहाँ से ये कट हो गया. And what else we get? 2ab cos theta is equal to minus b squared. तो यहाँ से मिला 2a cos theta is equal to minus b. Can we get any information out of here? Let us take cos theta, that comes out to be minus b by 2a. Okay, let us see the options now. This necessarily implies that b is 0. No, we do not get the idea about this. A and B are anti-parallel. That is true because जो cos थीटा का वैल्यू यहाँ से आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो नेगेटिव आ रहा है, राइट? ये सब चीजें तो पॉजिटिव हैं. Value of cos theta comes out to be negative. That means angle theta is lying in the second quadrant. Means theta is greater than 90 degree. Right? It is greater than 90 degree. So let us take the case and let us observe कि अगर वो एंटी पैरेलल है तो थीटा क्या होगा? 180 डिग्री. सो -1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a. तो यहाँ से मिलेगा b इज इक्वल टू 2a. राइट? सो b विल बी द करेक्ट फिट हियर. cos थीटा नेगेटिव आ गया मतलब एंटी पैरेलल है. राइट? देयर कुड बी अ केस एंटी पैरेलल व्हिच इज पॉसिबल. अब जरूरी नहीं है कि cos थीटा जब नेगेटिव आएगा मतलब एंगल 180 डिग्री ही होगा. एंगल कैन बी एनीवेयर बिटवीन 90 degree to 180 degree because in this case it lies in the second quadrant, right? Another one we will do from vectors. So very in a very good manner you have to think for this question and then let me know the answer. All should let me know the answer. All should let me know the answer. There might be possibility more than one option is true, so you have to check accordingly.
All should do quickly. So those who say here B and D, they are correct. For two vectors, this is always true. Let us see when it is always true. स्क्वायर कर देंगे जब भी ऐसा मॉड में रहेगा रिजल्ट हमारे पास, वी विल स्क्वायर टू रिमूव द मॉड. दोनों साइड स्क्वायर करने से क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2ab cos theta is equal to a square plus b square minus 2ab cos theta. So this gets cut. We have 4ab cos theta is equal to 0. So for the two vectors, this is always possible when the angle between them is 90. That means b is true. है ना? जब परपेंडिकुलर होंगे तो उसका डॉट, यही तो है डॉट प्रोडक्ट a dot b, right? This is the dot product a dot b. When either of them is zero, है ना? ये रिजल्ट जीरो कब होगा? जब या तो a या तो b, दोनों में से कोई जीरो होगा, the result will be zero, right? So b and d will be the correct fit here. Understood everyone? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? लेट मी नो दैट. Another question, little analytical one. Let us do this. All will do this one. And let me know what option you get.
Yes, everyone done this one? Let me know what answer you get. So here we have A, B, and C as the unit vectors. Then we can write this as A minus B mod plus B minus C mod square plus C minus A mod square. We can write this as just expand them. What you will get 2A square plus B square plus C square, and then minus 2AB minus BC minus AC, right? We will get this. Okay, we have taken minus as the common, so here we will get plus, right? So I just expanded them. Now since they are unit vectors, so this will result into, I'll take 1 1 1, so their squares are 1, so it will be 6 minus 2 AB plus BC plus AC. So this does not exist, this does not exceed, that means we have to find the maximum value. So here this one we can write it as A plus B plus C whole squared minus A square minus B square minus C square, right? We can write them like this. So this comes out to be 6 minus 2 A plus B plus C whole squared minus minus this will become plus, or let me replace this here only. Yes, and this will be 3. So this comes out to be 9 minus A plus B plus C whole square, and this is just a positive number which is greater than or equal to 0. So this value, whatever we get 9 minus something. So what is the maximum value that we can get? It is 9. Okay, another question we will do. So all will try this one. Yes, let us do this.
All will do quickly, quickly. Quickly, quickly, all will do. Ankit, tell me the answer in the chat. So here you have to find the slope. Slope means dy by dx. So just differentiate. You get dy by dx of 4x to power 4 plus sin x. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 16x to power 3 plus sin x का डिफरेंशिएशन cos x. And you have to find the slope. This is the slope at x equal to 0. That means put x as 0 here. You get 0 plus cos 0. That is 1 as the answer. Okay. This was very simple. Maurya, in this question you have doubt. So if cos theta comes out to be negative, then this does not hold true because this means AB cos theta is negative. It means A also can be negative, B also can be negative, cos theta also can be negative. But we have the information only cos theta is negative. That's why B should be true. Right? This is understood. So all should do this one, this question. Last question we can do.
All should do this one. This is the last question quickly. Same concept we can apply. If it is required, you can apply the concept now you have for the minimum and maximum values as well. Quickly, we'll try to do this one. What all things are given? Let us see. So the heat transfer inside a body is given by the equation dq is equal to ms delta theta. M is the mass, S is the physical constant called specific heat capacity. We will see all these things later on, but now only as per the equation we have to work out. It is also a positive constant, right? S is a constant for a given material. And theta is the temperature of the body. Now temperature of the body varies with time t as this equation. Theta is equal to 5t cube minus 3t squared plus 60 plus 10, right? This is given to us. The question is the time at which the rate of heat loss is minimum. Rate of heat loss. We have to find that time where the heat loss is minimum. So you have to get the minimum value of this delta theta, you have to differentiate it with respect to t. So it will be 15t squared minus 6t plus 6, right? I differentiate this, I get this expression. Now equate it to 0, we get the minimum or maximum value. But the question asked is minimum only. So even you can skip the checking for the minimum or maximum because automatically that will be minimum because it has to satisfy the condition. Just equate it to 0, you will get the time. So what we get? 15t squared minus 6t plus 6 equals to 0. Let us solve it. Divide throughout by 3. So 5t squared minus 2t plus 2 is equal to 0. Solve this, you get t as 2 plus minus root. So here no root exists. Let us check this again. 5t cube minus 3t squared plus 6t. If we differentiate, we get 15t squared minus 6t plus 6.
double dash मतलब double differentiation we cannot find it. We will not be required to find it because question में directly it is mentioned. जो result आएगा ये that you have to find out for the minimum value, right? Just for the minimum value you have to find out. So automatically it gives us the result minimum. We are already sure it is minimum. So double dash से हमें बस निकलता था कि minimum है या नहीं है, right? तो इसलिए हमने single differentiate किया and we equated that to 0. Let us see यहाँ पर बस equate it to 0 and find out the value for t. We shall get the result. So might be यहाँ पर negative होगा. So we will get this as 40 by 10. 2 plus minus root 44 by 10. Now time cannot be negative. So 2 plus root 44 by 10. You get approximately इसका आ जाएगा 6.5 something. So 8.5 by 10. So 0.8 approximately आ रहा है. Right, this is the way we will be finding there is something over here, something wrong, but the way is understood, right? So in the next class we will start with 15 minutes for the TPPs and the next 45 next 1.25 hours we will spend for newer unit. All right everyone, any doubt? No doubt. So let's meet in the next class. Bye everyone. Do the TPPs. All right, bye everyone. Do the TPPs in the next class. See you all in the next class. And stay tuned, from Monday onwards we will go with extra mathematical stuffs required for physics. And slowly सारे videos आ जाएंगे. All right, bye bye.